धन्यवाद. We love your presence. We love your holy presence. We welcome you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Oh, King of glory. King of glory. We welcome your holy presence. महिमा का राजा, हम आपका स्वागत करते हैं. प्रतापी राजा हमारा मध्य में, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु यहाँ पर. ओ उसकी महिमा यहाँ पर, उसकी सामर्थ्य यहाँ पर. जो विश्वास करते उनके लिए आज वो मंडरा रहा है. अद्भुत कार्य प्रकट हो रहा है. पवित्र आत्मा के कार्य. शाबालाबा राउडाबालाबा सियांदरे. कुछ समय आत्मा में बात कर सके. अगले 30 सेकंड अपना मुंह खोलकर आत्मा में अन्य अन्य भाषाओं में बात करे. रासोथोलो ब्रोही अंदानवा लहोतोम रियांदा लमौशिया लहोतोम हसिया नमौशे लिहोती मिरियांदा लमौडाबालाबा शबला दियांदे रिखमनगसियांदले रबासेथेरियांदले लुरुबाना सेमिया लुप्रोतिमिया शाथेरियांदले. Bless the Lord. We bless your name alone. We bless your name alone. We worship you, Lord. We lift up your name, Jesus. You are worthy. Yes, yes, somebody is receiving the healing in your body. Deliverance is happening. छुटकारा प्रकट हो रहा है. अद्भुत चंगाई प्रकट हो रहा है. क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ पर है. वो अद्भुत करने वाला है. वो चंगा करने वाला है. निराशा आशा में बदल रहा है. आमीन. बीमारी चंगाई में बदल रहा है. दुख आनंद में बदल रहा है. क्योंकि यीशु यहाँ पर है. किंग ऑफ ग्लोरी. उड़ामाना. आज आपका जीवन में एक अद्भुत प्राप्त करके जाना है. Receive your miracle today. Today is your day. Today is your miracle day. Today is your healing day. Deliverance आज आपका जीवन में. पूरामा शबालामा उड़ा रसथेरियांदले. प्रभु की महिमा उसी में है. वो अपनी आश्चर्य कर्म प्रकट करते हैं. पूरामा मामा शाथे ला दोरोबो शेथे लेहे दोरियांदले लाहो प्रियांदा नमस्ते. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Jesus, 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 you are holy. You are worthy. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh,
आदर की योग्य तू है प्रभु यीशु। आमें सारे प्रशंसा की योग्य यीशु तू ही है। We give you all glory to you. You are worthy. You are worthy. You are holy. You are mighty, O Lord. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yeshua. Yeshua. सब लोगों नाम को पुकार, वो आपका पास खड़े हैं, अद्भुत करने वाला। Jesus, 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 you are holy, you are mighty. Every bondage has been broken in the name of Jesus. Every sickness be healed in the name of Jesus. यीशु का नाम में बीमार चंगे हो जाए, असंभव संभव में बदल जाए, आत्मा प्राण शरीर यीशु में स्वतंत्र हो जाए। I speak healing, I speak deliverance, I speak freedom in the name of Jesus. Shamana ragasi andere, lando robosi andere. Something great is happening. Holy Spirit is touching you. Receive your miracle today. Receive your healing today. Jesus, Jesus, Jesus. You are merciful. You are wonderful. Oh, something great. Something supernatural. Something is happening in your life. Today is the day of miracle. Today is the day of miracle. Urama Shandalaba Randala Rabba Setare. Jesus, Jesus, He is moving in our midst. वो हमारा मध्य में चल रहा है। यीशु, 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 यीशु। Urama Shandalaba Rasatariandala. Yes, He is here. Angels are moving. Urama Shamanagaraga Shamariandalaba. Oh, यीशु का महिमा, यीशु राजा की महिमा, सर्वशक्तिमान की महिमा। Urama Shamala Rega Urama Baba Shandale. Oh, प्रभु आपसे कहते हैं, तू अनाथ नहीं है, तू लाचार नहीं है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरा प्यारा बेटा है। यीशु की महिमा के लिए शैतान की बोला वो सारे झूठ यीशु के नाम से भी कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। Somebody is receiving a miracle, miracle, healing today. This is the day of miracle day. This is the day of your miracle day. Hamana regadala gasutharaba shebrandana masiandere lembro satana. Oh, receive your healing, receive your miracle today. Today, today is the day of miracle. Jesus, Jesus. Urama hasiandere lahodobro tinia sate. Lehorobo Shibara Hasiandere Hamana Siatere. Oh yes, oh Yeshua Amana Gasiandere Yeshua Yeshua. Oh पवित्र आत्मा के आगे नहीं। Oh freedom, freedom, freedom in the name of Jesus, freedom in the name of Jesus. Oh, freedom in the name of Jesus, freedom in the name of Jesus. Every burden is taking away from your life. आपके अंदर से वो बोझ प्रभु उठाकर निकाल रहा है। Cast out your burden. आपकी आमेन वो जो दर्द
वो तकलीफ यीशु को दे दे। आमीन। You are no more in bondages। आप बंधनों में नहीं रह सकता। आपका दर्द आपका पिता का हाथ में दे दे। Oh, Jesus, we praise you. You are glorious. You are holy. You are mighty. Abba. Jesus. Holy Spirit, thank you. Yes. आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आपके अब्बा यहाँ पर है। यीशु है। कितने लोग यीशु से कहेंगे मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा, जीसस, जीसस, oh yes, प्रभु से कहे अब्बा मुझे आपकी जरूरत है। Jesus, we praise you, we worship you. We will give you all glory and honor to you. आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा आपको मिले। आपके जैसे और कोई नहीं यीशु। आप हमारे अब्बा हैं। हे अब्बा, हे पिता, पुकारने के लिए आपने हमें सुपुत्र की आत्मा दिया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। सारे आदर महिमा आपको मिले। मैं अनुभव करता हूं कुछ लोगों को अद्भुत चंगाई मिला है। अपनी आंखें बंद रखे। स्टिल दैट हीलिंग इज हैपनिंग। किसी का लेफ्ट शोल्डर और हाथ आपका वहां शोल्डर में बहुत पेन है। यीशु आपको आज पूर्ण रूप से चंगा किया। हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी हीलिंग आज इस सुबह के समय हुआ। पवित्र आत्मा मुझसे कहते हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारे दर्द प्रभु आज पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। Receive your, you are no more a sick person. आप अपने जीवन में बार बार ये न कहे ये दर्द। वो दर्द यीशु ने क्रूस पर ले लिया। आज यीशु ने आपको चंगाई दे दिया। थैंक यू जीसस। अपना मुंह खोल कर बोले यीशु आपने दिया वह चंगाई के लिए धन्यवाद। आपने दिया वह छुटकारे के लिए धन्यवाद। I receive that healing. यीशु नासरी के नाम से। Every knee shall bow, every tongue confess
that Jesus Christ is Lord. Every knee shall, अगर आप घुटने में आ सकते हैं, आप अपनी घुटने में आए. That Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबां बोले कि यीशु ही प्रभु है. एक बार और, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबां बोले कि यीशु ही प्रभु है. प्रभु है, प्रभु है, यीशु प्रभु है. मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है. प्रभु है, प्रभु है, यीशु प्रभु है. मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है. हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबां बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है. हर एक घुटना टेकेगा, यीशु का नाम ले कि यीशु ही प्रभु है. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yes, you alone are worthy. यीशु आप हमारा प्रभु है. अपनी दोनों हाथों को उठाकर अगर आप बोल सकते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा राजा है. अब बीमारी को मेरे ऊपर राज करने के लिए अनुमति नहीं है. अब शैतान मुझ पर राज नहीं कर सकता. कोई आमीन बंधन मेरा जीवन में नहीं रह सकता. Jesus is my Lord, Jesus is my King, Jesus is my everything. I praise you, I worship you. Yes, आप अपनी मुंह खोलकर आप बोल सकते हैं, मेरा परिवार में वो दुख नहीं रह सकता. यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है. मेरा परिवार में अब लड़ाई नहीं रह सकता. यीशु शांति का राजा मेरा है. पूरा मासिया अंदर है. अब अपनी मुंह खोलकर बोले, आज कुछ अद्भुत हो रहा है, आज कुछ अद्भुत हो रहा है आपका जीवन में. टुडे आपका जीवन में अद्भुत हो रहा है. Receive that deliverance today, today. काफी समयों से आपका पीछे चलने वाला आमीन वो दुष्ट की ताकत आज यीशु के नाम से जड़ समेत उखड़ रहा है. यीशु का नाम से. प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम और शांति और आपकी आनंद, आपकी भरपूरी हर एक परिवार में, हर एक व्यक्तिगत जीवन में हम रिलीज करते हैं. आपके आनंद में, भरपूरी में आपका कलीसिया, आपका प्रिय लोग आगे बढ़ेंगे. सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु. भारत में आपकी महिमा सब जगह, सब राज्यों में, सब लोगों में प्रकट होने जा रहा है. एक आत्मिक जागृति की लहर उठ रहा है, वो सब जगह फैल जाए. पवित्र आत्मा मदद करने के लिए धन्यवाद. यीशु मसीह का नाम में सब लोग मिलकर बोले आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. अब आप ठीक से बैठ सकते हैं.
हालेलुया। आपका दाएं और बाएं बैठे हुए व्यक्ति को देखे, बोलो आज कुछ आपका जीवन में प्रभु ने कर दिया, समथिंग सुपरनैचुरल। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कितना लोग दिल से बोल सकते हैं? अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा यीशु, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन। दिल से कितना लोग बोलेंगे हमेशा मेरा प्रभु की मैं स्तुति करूंगा, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे पास प्रभु के पास आने के समय मेरा जीवन में ऐसे क्यों हुआ, आपने क्यों किया, ऐसे नो कंप्लेंट, क्योंकि प्रभु ने मेरा जीवन को नरक की आग से बचा लिया, मुझे पापों से छुड़ाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे अपना बेटा बना दिया, बेटी बना दिया। हालेलुया। कितना लोग बोल सकते यस लॉर्ड आई लव यू। मैं सदा आपकी स्तुति करेंगे क्योंकि आपका प्रेम अनोखा है, अद्भुत है। हालेलुया। आमीन। आपका चेहरे में वो दिखते नहीं है, चेहरे में है आनंद है, अरे दिखना चाहिए आनंद, आपका चेहरे में प्रकट होना है। आमीन। पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे दाऊद के ऊपर जो अनॉइंटिंग था मेरा ऊपर आ गया, मुझे प्रभु को स्तुति करने का मन। आई वॉन्ट टू वर्शिप माई लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम उसका 15 में लिखा हुआ है, गिरा हुआ दाऊद की तंबू फिर से बनेंगे। मुझे लग रहा है ज़ायन में वो तंबू बन रहा है। आमीन। गिरा हुआ तंबू फिर से, हालेलुया, आराधना और स्तुति और प्रशंसा की तंबू। हालेलुया। चिल्ला कर बोलो मेरा यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की है। बोलो मेरा यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों की हालेलुया सुनो। हालेलुया। आमीन। आपको हालेलुया उत्साह से बोलने के लिए आपकी स्पिरिट सामर्थ्य होना है, आपकी अंदरूनी मनुष्यत्व
ढीला है। हालेलुया। आपका जीवन में वो आनंद कब आते हैं? संसार, आपका शरीर की लालसा जब पूरा हो जाएगा, लेकिन अब आत्मा में हालेलुया बोलना है। योर इनर मैन स्ट्रॉन्ग होना है। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो हालेलुया। आपको चिल्लाना पड़ेगा। हालेलुया। आप नहीं चिल्लाएगा, ये पत्थर चिल्लाएगा। बाइबल कहते हैं अगर परमेश्वर का बच्चा नहीं चिल्लाएगा तो क्या चिल्लाएगा? पत्थर चिल्लाएगा, प्रभु की महिमा करेगा। अब बोलो पत्थर चिल्लाना है या हम चिल्लाएंगे? आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। मैं आपको बोलूं, आप संडे यहां पर आकर दुखी होकर जाना प्रभु नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहते। आप उत्साही होकर, आनंदित होकर, आप एक उत्सव की अनुभव आपका चर्च में मिलना है। बहुत सारे चर्च में शायद जाने के समय हमें ना वहां पर निराशा और दोष लगाने वाली बातें, लेकिन ये चर्च ऐसा नहीं है। आप उत्सव मनाने के लिए आ रहा है। बोलो जय की उत्सव मनाते हम। We are rejoicing in the presence of God. So many problems आपका जीवन में हो सकते हैं, लेकिन हम सदा जय के उत्सव में चलते हैं। बोलो प्रॉब्लम मेरा सामने आएगा, आमीन। प्रॉब्लम मेरा ऊपर नहीं चढ़ेगा, प्रॉब्लम के ऊपर मैं चलूंगा। हालेलुया। आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, आपका जीवन में समस्या आते हैं, आप उसके ऊपर चलने वाला है। समस्या आपके ऊपर नहीं, प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर मोर देन ए कॉन्करर। हालेलुया। हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। इसलिए आप जब आराधना करने, ये मेरे घर में इतना सारा प्रॉब्लम है, कैसे? पास का व्यक्ति को बोलो, यू आर मोर देन ए कॉन्करर। आमीन। आप जयवंत से भी मसीह में। आमीन। तो इसलिए समस्या को देखने की जगह समस्या के ऊपर जय दिया हुआ यीशु को देखकर बोलो, यीशु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकते हैं? बोलो यीशु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध कर सकते हैं? मेरा परमेश्वर शत्रुओं का सामने मेरे लिए मेष बिछाने वाला परमेश्वर है। वो दरिद्रों को खूरे पर से उठाकर अधिपतियों का साथ बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप जो बोलते हैं वो आप है। आप अपने दुख बोलते हैं, यू आर दैट। अगर आप बोलेंगे मेरा परमेश्वर खूरे पर से दरिद्रों को खूरे पर से उठाकर अधिपतियों का साथ, आज आप वहां पर है, कल अधिपतियों का साथ बैठेंगे। आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, ये जुबान में इतना ताकत है, इतना ताकत है। आमीन। आपकी सारे परिस्थिति बदल सकते हैं। हालेलुया। आज का भिखारी कल का राजा बन सकते हैं। आज के चरवाहा, आमीन, भेड़ों को चराने वाला कल के राजा बन सकते हैं। आमीन। ये जुबान प्रभु की महिमा के लिए प्रशंसा करें। हालेलुया। राजा है महान यीशु, राजा, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में। राजा है महान यीशु, राजा है महान मेरा, राजा है महान यीशु, राजा है महान।
यहूदा का राजा है महान यीशु राजा है महान मेरा राजा है महान यीशु राजा है महान मेरा राजा है महान यीशु राजा है महान मेरा राजा है महान यीशु राजा है महान। आमीन। मैं कुछ आत्मा में देखते हुए गीत गा रहे क्योंकि मेरा यीशु राजा है। राजा तो कुछ करने जा रहे हैं। बोलो 6वें महीने में राजा कुछ करने जा रहे हैं। हम कितने लोग विश्वास करते हैं? परिस्थितियां बदल रहा। 6वें महीने में जिब्राइल दूत मरियम के पास आकर कहा तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु। हालेलुया। 6वें महीने में ज़ायन में कुछ होने जा रहे हैं। ज़ायन में कुछ विश्वास करने वालों का जीवन में कुछ होने जा रहे हैं। अद्भुत होने जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके अंदर डाउट है तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा पतरोस क्यों संदेह किया? विश्वास करो। पड़ोसी को बोलो विश्वास करो। आपका जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपकी उम्मीद से बढ़कर, आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर कुछ करने जा रहे हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैंने क्या देखा है आपको मालूम है? कोई बोल सकते भविष्यवाणी की आत्मा है तो बोलो मैंने क्या देखा है। मैं बता देता हूं, आप बोल ही नहीं सकता शायद। कोई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मैं देख रहा है ये होल इतनी जगह बदलते बदलते लाखों का भीड़ में हम जा रहे हैं। ये भीड़, ये छोटा सा झुंड लाखों का भीड़ में बदलने जा रहे हैं। मैं उसको देखते हुए मेरा राजा महान है वो बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे कल हम हजारों से लाखों में बढ़ने जा रहे हैं? आमीन। आमीन। उसको मैं आत्मा में देखते हुए, तभी तो मेरा राजा है महान। नहीं तो मैं गाना गाने के लिए तो नहीं गा रहे, मैं बोल रहा राजा महान है। मेरे से नहीं हो सकता लेकिन मेरा राजा मेरा साथ है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। आमीन। कितना लोग आत्मा में देख सकते हैं? आंखें बंद करके आत्मिक आंखें खोलकर देखो। आमीन। लाखों का भीड़ यीशु की आराधना करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हम बढ़ने वाला है, हम घटने वाला नहीं। हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर। पड़ोसी को बोलो बढ़ोतरी का परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग पहली बार यहाँ पर है। आप अपने हाथों को उठाकर दिखा सकते हैं फर्स्ट टाइम आया। ओ यस। आप अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे प्लीज। आप अपनी जगह में खड़े हो जाए क्योंकि हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। आप पहली बार हमारा मध्य में ज़ायन परिवार में आए हुआ सारे प्रिय लोगों को हम स्वागत करते हुए वेलकम यू। हम आपको स्वागत करते हैं। आप परमेश्वर की बुलाए वाले हो गए। प्रभु ने आपको यहां पर लेके आया। हम इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा इन प्रिय लोगों का जीवन में। प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हमारे मध्य में आया हुआ हर एक भाई बहनों को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। खुदा बाप, इन पर आपकी अनुग्रह मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट करें। यीशु का नाम है, आमीन। कृपया बैठिए। गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु का राज्य में बोने जा रहे हैं। आनंद के साथ, हर्ष के साथ, धन्यवाद के साथ बोना है। आप गरीबी में नहीं रह सकते। पास के व्यक्ति को बोलो हम गरीबी में नहीं है। यीशु हमारे लिए क्रूस पर कंगाल हो गया, हम यीशु में धनी हो गया, हो गया, हो गया। आमीन। फाइनेंशियल एरिया में आपका, हम सबका जीवन में ब्रेक थ्रू की जरूरत है।
लेकिन उसमें आपको मैं कहना चाहता हूं, पैसा का लालच हर प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसा को प्रेम बिल्कुल नहीं करना। पड़ोसी को थोड़ा हिलाकर बोलो, पैसा को प्रेम कभी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पड़ोसी को प्रेम करो। पैसा को प्रेम करने के लिए यीशु ने नहीं कहा। तुम्हारा दोस्त को प्रेम करने के लिए बोला, पड़ोसी को प्रेम करने के लिए बोला। लेकिन हम पैसा को प्रेम करके पड़ोसी को नाराज करते, पड़ोसी के साथ शत्रुता बनाते। हाँ या ना? भाई बहन के साथ लड़ाई, क्योंकि हम पैसा को प्रेम करते हैं। चर्च में आते हैं, आपका सोच बदलो। हालेलुया। अगर आप पैसा को प्रेम नहीं करेगा ना, आपका जीवन बच गया, आप आजाद हो गया। क्योंकि बाइबल कहते दो मालिक की सेवा तुम नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर की सेवा करो। बाइबल कहते परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, उसके साथ साथ ये सारे वस्तुएं तेरा पीछे जो जरूरत है, खाना है, पीना है, रहना है, पहनना है, जो भी चाहिए बोलो सब कुछ। आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपका जीवन में समझना है पसीना बहा बहा थोड़ा सा खाने के लिए नहीं, जरूरत ही नहीं है। वो शराब है सुबह से शाम तक। पास का व्यक्ति को बोलो, परमेश्वर नींद अपनी भक्तों को देते, नींद में भी देते। इसका मतलब मेहनत करने के लिए नहीं, मना नहीं कर रहे, यू हैव टू वर्क, लेकिन पैसा कमाने के लिए। हमारा चर्च में कुछ बच्चा ऐसा है 24/7 चर्च में मिलते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट सैलरी भी लेते हैं। पता नहीं, आउट ऑफ रेंज उसका प्रमोशन मिलते हैं, उसका इंक्रीमेंट मिलते हैं। 24/7 हमें कभी भी देखो चर्च में, अरे तू काम करने वाली है, काम करने वाला है। कभी कोई कंपनी का डायरेक्टर है, कोई कंपनी का सीनियर ऑफिसर है, लेकिन प्रभु का राज्य के लिए हमेशा अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आने के लिए भी टाइम नहीं है, पास्टर जी संडे भी काम करना है, फिर भी कर्ज, फिर भी दिक्कत। आपको क्या चाहिए? पड़ोसी को बोलो समझ खोलना है। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारे वस्तुएं तेरे पीछे आएगा। आज इस बातों में आप आजाद हो जाए। ऑफरिंग देना, आप 10 वाला कहीं मिलेगा, ऐसा जिंदा छोड़ दो। प्रभु का राज्य में देना है, बोना है, बेस्ट। आप अगर ऐसा सोच शुरू करेगा ना, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप सच बोलता हूं, पिछले 24 साल से प्रभु का सेवकाई करते हुए मैं किसी से 5 रुपये भी उधार नहीं मांगा, लेने की कोशिश नहीं किया। आपकी आशीष के लिए मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं गरीबी अनुभव किया हुआ व्यक्ति है। आई हेट गरीबी, कर्ज को मैं हेट करता हूं। कोई भी व्यक्ति कर्ज में नहीं रहना, कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं रहना। दैट इज कर्स, वो श्राप है। मेरा बाप अमीर है, बोलो मेरा बाप अमीर है, मैं गरीबी में नहीं रह सकता। लेकिन आप परमेश्वर से बढ़कर धन को प्रेम करते हैं, आप जितना भी धन का पीछे जाएगा, आपका जीवन में मुसीबत बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। आपका जीवन में आप जितना भी पैसा को आमन पाने के लिए जाते हो, वो पैसा आपको नाश में डुबाएगा। डोंट रन बिहाइंड मनी, पैसा का पीछे नहीं भागना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वेल्थ मेरा है। पास का व्यक्ति को बोलो, पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता
मेरा परमेश्वर का है, मेरा परमेश्वर मुझे वो सब कुछ अधिकार का साथ लेने के लिए सब सामर्थ्य देगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते दुष्ट धन बटोरेंगे, धर्मी लोग, मैं हमेशा बोलते हैं, हमें इक्लेसियास्टिक 2:26 पढ़ के देखो। परमेश्वर पापियों को कष्ट भरा हुआ काम देते हैं, जिस परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसको देने के लिए। हालेलुया। फिर से बोलो, समझ में नहीं आया? पापी को कष्ट भरा हुआ काम देते, बेटा काम करो, सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, नाइट ड्यूटी करो, दिन की ड्यूटी करो, 24/7 काम करो। किस लिए? परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं उसको देने के लिए। तो ऐसा है तो फिर क्या करना चाहिए? पापी बनकर हमें झूठ बोलकर पैसा कमाने के काम करना है? परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीना है। परमेश्वर की इच्छा पर आप जीवन बिताओ। पास के व्यक्ति को बोलो, उसको बटोरने का काम, अनुभव करने का काम मेरा है। ऐसा बनना चाहते हैं? मैं कितना भी चिल्लाऊं आपका दिमाग में नहीं आते, क्योंकि आपको लगता है पास्टर तो ऐसे ही बोलते हैं। आज मैं उसका प्रचार करने के लिए टाइम है तो मैं प्रचार कर, हाँ मैं परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, हमारा 1.5 घंटा 2 घंटे का संडे वाला, मैं चाहता हूं कहीं ग्राउंड मिल जाए, हम सुबह से शाम तक बैठे रहे, आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन सुने। हालेलुया। जल्दी आने वाला है, बोलो जल्दी आने वाला है। आमीन। सो प्रभु का राज्य में बोए। आमीन। पवित्र परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला हुआ स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग की परमेश्वर अपनी महिमा की धन के अनुसार सबकी जरूरतें पूरी हो जाए। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भली वस्तु की कमी ना रहे, भरपूरी रहे। क्रूस पर आप हमारे लिए कंगाल हो गया, हम यीशु में धनी हो गया। भरपूरी में जीने के लिए सबको मदद करे। कोई भी जन धन को प्रेम ना करे। परमेश्वर देने वाला धन को एक अच्छे रखवाली की जैसे इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि दे, सामर्थ दे। महिमा आपको मिले यीशु का नाम में, आमीन आमीन। सबको प्रभु आशीष करे। और आप सब लोगों को याद है, कल से हमारा 4 दिन का यूथ मीटिंग शुरू हो रहा है। कितना लोग प्रार्थना कर रहा है? आमीन। कुछ लोग सच में बोला मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। आज रात को जाके प्रार्थना जरूर करना, ठीक है? कल से, क्योंकि मैं नहीं चाहते हैं हमारे जवान संसार की नाश में डूबकर खत्म हो जाए। बहुत सारे अपने प्रिय लोग अपने मन में कभी एक बार सोचा होगा, ये यीशु मुझे पहले क्यों नहीं मिला था? अगर मेरा जीवन में पहले मिला होता तो मेरा जीवन ऐसा नहीं हो सकता। इससे सोचा हुआ एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है? अपने हाथ उठाकर बोलो, पहले क्यों नहीं मिला था यीशु? बहुत सारे हाथ, है ना? आमीन। तो आपको समझना है, हम अपनी जीवन की उस सारे नाश की ओर जाकर आखिरी में प्रभु ने अनुग्रह किया, हमें प्रभु ने बचा लिया। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं उस सारे परेशानी अनुभव करने के बाद ये पीढ़ी यीशु को पाए। हमारी ये पीढ़ी, ये जवान पीढ़ी उस नाश में जाकर कष्ट में, दुख में, परेशानी में होकर प्रभु बचा ले बोलने के पहले हम इस बच्चों को उसके लिए तैयार करना है। हमारा देश में इससे एक पीढ़ी उत्पन्न होने पाए। इस बार का यूथ मीटिंग में हमने स्पेशली मैंने बोला है, ये मीटिंग एक अपॉस्टोलिक और प्रेरित का प्रोफेटिक और अपॉस्टोलिक कॉन्फ्रेंस है। मैं विश्वास करता हूं भारत में परमेश्वर का अपॉस्टल, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता प्रकट होने का समय आ गया है। खास तौर पर उत्तर भारत में होने जा रहे हैं। आमीन। सब लोग विश्वास करें, टाइम आ गया, समय आ गया। आमीन। ये परमेश्वर करने जा रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह से ऑलमोस्ट कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? 520 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हमने 500 बोला था, लेकिन 520 तक रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप अपने घर पे बैठकर प्रार्थना करना है। आपका जनरेशन, हमारा इस पीढ़ी, मूसा का बाद एक यहोशू तैयार हो गया और एलिया का बाद एक एलीशा तैयार हो गया। ऐसा है तो इस पीढ़ी में एलीशा तैयार होना है, यहोशू तैयार होना है। वो काम हमारा है, हम करना है ना। आपका प्रार्थना का द्वारा ये होने जा रहे। और पिछले कुछ दिन से मैं सुन रहा हूं, कल एक हमारे एक मीटिंग था, वहां हमारे एक भाई आकर बोला था 6वें महीने में कुछ होने जा रहे। पास्टर कुछ दिन से बोल रहा है। मेरा विश्वास है ये यूथ मीटिंग में कुछ होने जा रहे। कल एक व्यक्ति, हमारा एक मीटिंग था, तो एक व्यक्ति बोला परमेश्वर मुझे बोल रहा है 26 तारीख को परमेश्वर ऐसा कुछ कार्य करने जा रहे। मैंने बोला किसी ने मुझे पहले भी बोला था 26 तारीख को कुछ। तो ने एक बेटी आमीन खड़े होकर बोला मेरा भी। अब कौन था वो? यहां पर कहीं है?
आमेन। 26 तारीख को कुछ होने जा रहे, प्रभु ने मुझसे बोल रहे, उसको बुला ले। 26 को कुछ होने जा रहे। तो मैंने सोचा था ये बच्चों के द्वारा प्रभु बात करते हैं। आमेन। आपने क्या सुना है, जल्दी आके बताओ। यूथ मीटिंग का अनाउंसमेंट तक नहीं था, मुझे नहीं पता कि पास्टर अंकल ने उस टाइम डिसाइड भी करा था कि नहीं कि यूथ मीटिंग है। लेकिन उस टाइम जब मैं 6 घंटे की प्रेयर में, उसके बाद हमारी वीबीएस की डांस की प्रैक्टिस थी, तो मैं सुबह आ गई थी कि मीटिंग अटेंड कर लूँगी। लेकिन मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही थी प्रेयर में, तो उस टाइम मुझे प्रभु ने सिर्फ एक डेट बोली, 26 जून। तो मैंने कहा प्रभु ये डेट क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस डेट में क्या था ऐसा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पता नहीं उस दिन क्या होगा, मेरा यही था। फिर मैंने ईयर का मतलब मुझे ईयर नहीं बोला, तो मैंने सोचा कि 25 होगा, मे भी 25 हो, लेकिन 25 नहीं था। फिर मैंने दोबारा प्रेयर करी, मैंने अंकल को बताया इस वीक में वेडनेसडे, तो अंकल ने कहा कि कुछ अद्भुत होगा। फिर मैंने दोबारा प्रेयर करी, तो मुझे प्रभु ने बोला कि जो होगा इसी साल होगा, इसी महीने होगा, क्योंकि इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यीशु मसीह के बच्चे का भी वेट नहीं करते, जो उन्होंने मांगा उनको वो मिलता है। इसलिए, और मुझे पता भी नहीं था कि यूथ मीटिंग है। मैं अपने घर में मैंने सबसे पूछा कि 26 को क्या है, मैंने अपनी नानी से भी पूछा, मासी से भी पूछा, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि यूथ मीटिंग है। फिर पास्टर ने बोला तो मैं शॉक थी कि 26 को यूथ मीटिंग है, और मुझे वो डेट अब मिली। फिर झज्जर के एक भैया थे, उनको भी कल मिली, अमित भैया को भी ये डेट मिली तब, क्योंकि मैं 2 दिन पहले पास्टर अंकल को बताने के बाद मैं सोच रही थी प्रभु कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ में अगर प्रभु ने बात करी है कहीं गलत ना हो। लेकिन प्रभु ने सच में बात करी है, और मुझे प्रभु ने 1 नहीं 2 तो जनों का कंफर्मेशन दिया है। आमेन। और होपफुल कि उस दिन कुछ अच्छा ही होगा, और प्रभु जानते हैं क्या होगा। आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप विश्वास करें, अब ऐसा नहीं है, आप समझ लेना, इस चर्च के अंदर ऐसा प्रभु एक पीढ़ी को तैयार कर रहा है। सपने के द्वारा बातें कर रहे, दर्शन के द्वारा बातें कर रहे, और सपना को व्याख्यान करने वाला एक टीम तैयार हो रहा है। आपको भी सपना देखते हैं तो चर्च में उसका व्याख्यान करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। सो मैं आपको बोलना चाहता, इट्स अद्भुत हो रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग एन आर्मी फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। अगर नबुकदनेस्सर का समय पर सपना को व्याख्यान करने के लिए कि दानियल था, और मिस्र की फिरौन की सपना को व्याख्यान करने के लिए एक जोसेफ था, ऐसा है आमीन। इस देश में कुछ लोग सपना देखेंगे, उसको व्याख्यान करने के लिए कलीसिया लोगों को तैयार कर रहे, पवित्र आत्मा तैयार कर रहे, आमीन। कुछ लोग सपना देखकर परेशान हो जाएगा, व्याख्यान करने के लिए ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ एक टीम, बोलो ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ एक टीम कलीसिया में तैयार हो रहे, आमीन। पवित्र आत्मा, आमीन। जो रिवाइवल के लिए एक टीम तैयार हो रहा है, लेकिन चर्च में बहुत सारे लोग इन कोई बातों में नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बी रेडी फॉर समथिंग। पास का व्यक्ति को बोलो, संसार में खोना नहीं, ये सीजन प्रभु की महिमा के लिए तैयार होने का है, आमीन। आपको भी परमेश्वर ने बुलाया। हम एक वचन जल्दी से देखेंगे, माय गॉड, हालेलुया। इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15 से लेकर हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 15 वर्ड्स 15 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है,
और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ को पूर्ण करता है। आमीन। इस वचन एफेसुस की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस लिखते हैं, लेकिन 2000 साल का बाद में भी ये वचन वैसे ही है आज की कलीसिया के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी है। विश्वास करें, ये वचन आज मेरे लिए है। बोलो, इस समय के, इस पीढ़ी के लिए भी है। ये हम पर पौलुस कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया के लिए धन्यवाद करते। पौलुस एफेसुस की कलीसिया के लिए धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु में कलीसिया का विश्वास सुनकर बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बोलूं, दो बात आपका जीवन में एक परमेश्वर देखना चाहते हैं और आपका पास्टर मेनली आपका जीवन में। एक पौलुस एक प्रेरित है। पौलुस एफेसुस में जाकर कलीसिया का स्थापना किया। पौलुस के द्वारा वहां पर जातियों का उद्धार हुआ। आप प्रेरितों का काम 19वें अध्याय पढ़ेगा। वहां पर पौलुस जब पहुंचा था तब लोग यीशु मसीह का बपतिस्मा भी नहीं लिया था। वहां पर लोग पवित्र आत्मा का विषय में नहीं जानते थे, लेकिन पौलुस जाकर यीशु मसीह का नाम से 12 लोगों को बपतिस्मा देकर वहां पर प्रभु की सेवकाई शुरू किया। वहां पर क्या हुआ, एफेसुस के अंदर एक रिवाइवल आया। वो रिवाइवल में सारे जादूगर अपनी पोटलियां, अपनी सारे पुस्तकें जला दिया और उसने बोला, यीशु मसीह का सामत का सामने अब हमारा जादू नहीं चलते, अब हमारी टोना नहीं चलते। बोला है तो बेकार में ये रखना क्या है, जला दो। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर की महिमा जब प्रकट हो जाएगा, बाकी सब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ चर्च। वही कलीसिया का काम है। कलीसिया आप और मैं हूं। हालेलुया। तो वहां पर पौलुस जब सेवकाई कर रहे थे, अर्थमिस देवी की महिमा चला गया। पूरा एशिया में अर्थमिस देवी की बहुत प्रशंसा होते थे, लेकिन पौलुस वहां पर जाकर यीशु की प्रशंसा करने लगा, यीशु का सुसमाचार प्रचार करने लगा, उसकी महिमा चला गया। हालेलुया। बोलो, मूर्तियों का आमेन बहांगा, अर्थमिस की मूर्ति की महिमा चला गया है और जीवित परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाते हैं, बाकी की महिमा चला जाते हैं। आपके द्वारा वो महिमा होना है। हालेलुया। तो उसका द्वारा वहां पर कलीसिया स्थापित हुआ है। आमीन। एफेसुस की कलीसिया के लिए वो जब जेल में था, जब पत्र लिखते बोलते हैं, आपका विश्वास को देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एवरी मेंबर ऑफ द चर्च, आमीन, प्रभु पर और प्रभु की वचन पर, यीशु पर आप विश्वास करने वाला व्यक्ति बन जाए। बाइबल कहते हैं अविश्वास की दुष्ट हृदय किसी को भी ना हो। अविश्वास आपका जीवन में आते प्रभु का वचन पर, उसके वायदों पर, यीशु पर आपका विश्वास खत्म हो जाते, सब कुछ आपका जीवन में खत्म हो जाते। आप यीशु पर विश्वास करना, उसकी वचन पर विश्वास करना है, तब आपका जीवन में परमेश्वर का काम आप देखने जा रहा है। और विश्वास और दूसरी बात है परमेश्वर का प्रति कलीसिया का प्रेम। ये दोनों बातें हमें, आप
आपका जीवन से हम उम्मीद करते हैं यू लव द लॉर्ड मोर देन एनीथिंग एल्स। पौलुस उस कलीसिया के लिए बोलते हैं आपका विश्वास। आमीन। कुछ जगह में पौलुस बोलते हैं आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे भी कहता हूं एवरी ज़ायन फैमिली आमीन विश्वास में बढ़ते जाए और परमेश्वर का प्रेम में भी बढ़ते जाए। ये दोनों में आपका जीवन में है, आपको कोई हरा नहीं सकता। नोबडी कैन आमीन फेल यू, आपको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु में आप सामर्थ्य हो जाए थे। दो बातें आपका जीवन में याद रखना है, विश्वास और परमेश्वर पर प्रेम, उसकी वचन पर, उस यीशु पर आपका प्रेम। आई लव मोर देन एनीथिंग एल्स माय लॉर्ड। मैं प्रभु को प्रेम करता हूं। मैं आपको बोलूं पिछले मैं बोल रहा हूं 24 साल से मैं ये प्रभु का सेवकाई करने का कारण आप मुझे धन्यवाद बोले, आदर बोले, पास्टर अच्छा है, आई डोंट केयर एनीथिंग। आपके मुंह से मिलने वाला कोई तारीफ मुझे नहीं चाहिए, आपका कोई साधन मुझे नहीं चाहिए, आपके कोई धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। आई मीन व्हाई आई एम वर्किंग, व्हाई आई एम सर्विंग फॉर द लॉर्ड। आई मीन यीशु का प्रेम मुझे मजबूर करते हैं। आई मीन मैं रात को यहाँ पर हम अपने बच्चे को साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। आप आराम से सो रहे होंगे, हम 12 बजे से 3 बजे तक हम इस चर्च में आकर प्रार्थना करते हैं। वही हमें क्यों नींद को खराब करके हम आके प्रार्थना, आई लव माय जीसस, हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर को हम प्रेम करेगा, आपको कोई तारीफ की जरूरत नहीं, आपको कोई आमीन हाँ वाहवाही बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप बोलेंगे मैं प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे। कल ऊपर हम कल से मीटिंग है, ऊपर छत में आमीन कोई काम कर रहे थे। आमीन किसी ने उससे झाड़ू ले लिया। आमीन झाड़ू लेने के समय उसने बोला नहीं मुझे करने दो, क्योंकि मैं मेरा यीशु को प्यार करता हूं। हाँ कितनी अद्भुत बात है। आई लव माई जीसस, इसलिए मैं झाड़ू लगाता हूं, इसलिए मैं कुछ करता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं आप प्रभु को प्रेम करते हैं, आप प्रभु के लिए कुछ भी करेंगे। हालेलुया। एक प्रेमिका अपने प्रेमियों के लिए कुछ करते हैं या आमीन उसके लिए जो भी करते हैं, क्योंकि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके अंदर भी यीशु का प्रति आपका प्रेम बढ़ते जाए, ताकि प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एंड पौलुस बोलते मैं धन्यवाद करके आमीन प्रभु से प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हैं? आमीन उसने बोला है आमीन ये प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, हमें द रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर को मुझे जानना है। हमें इस संसार की बहुत कुछ चीजें आप जानते हैं। हमें इधर से सूरज कितना दूर है, पृथ्वी से कितना दूर है सूरज, और आप जानते होंगे बहुत सारे चीजें स्कूल में पढ़ते होंगे, आप इधर उधर से जानते होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सब जानकारी अच्छा है, लेकिन सूरज को बनाए हुआ परमेश्वर को आप जानना जरूरी है। हमें पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर को जानने की जरूरत है। आपको और मुझे इस धरती पे जीवन दिया हुआ परमेश्वर को जानना उससे भी जरूरी है। You have to know the creator God. क्रिएशन के बारे में आप बहुत जानते हैं, but I want to know the creator of my life and the creator of everything, heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी को, सूरज और चंद्रमा को, तारागणों को और सब कुछ चलाने वाला यस परमेश्वर को I want to know. आपको मालूम है यस धरती आमीन घूमते हैं ना? आपको मालूम है ये धरती का पोजीशन 1 इंच इधर हो जाए, 1 इंच इधर हो जाए, गड़बड़ हो जाते हैं। मालूम है? बहुतों को नहीं मालूम। अगर 1 इंच इधर हो जाए, पृथ्वी आग से जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 1 इंच इधर हो जाएगा, पृथ्वी फ्रीज हो जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह है। The creator God,
created everything in a perfect way. आमीन, सुंदर तरीके से प्रभु ने ये सब कुछ बनाया. आमीन, you have to know the creator of my life, the creator of the universe. पौलुस बोलते हैं, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, हमें प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर की प्रकाशन और ज्ञान की आत्मा तुम्हें मिले. The revelation and the wisdom of God. परमेश्वर का ज्ञान मुझे चाहिए. I want to know my Lord. मुझे परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है. आमीन. मैं आपको बोलना चाहता हूं, sit in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से बोलो, Lord, reveal your truths in my life. मुझे सोना चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरा शादी हो जाए, मेरा ये, I mean everything. you प्रार्थना करे, कोई दिक्कत नहीं. But more than anything else, you have to pray. I want to know my Lord, my Father. Hallelujah. Oh, I want to know my Creator. मेरा पिता को मैं जानना चाहता हूं. Hallelujah. मैं आपको बोलूं, कितना बच्चा हमें पूरा रात बैठकर पढ़ते हैं अगले दिन की एग्जाम लिखने के लिए, स्कूल में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए. मैं बोलता हूं, हमें उसकी आधा टाइम आप प्रभु को जानने के लिए समय बिताए. आपका पढ़ाई से बढ़कर, आपका ज्ञान से बढ़कर इस संसार की आपका परमेश्वर को आप आशीष पाएगा. क्योंकि सब पढ़ा लिखा लोग संसार में नाश हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया वो लोग संसार के ऊपर जीत पाते हैं, जय पाते हैं. यू हैव टू नो द क्रिएटर. आप अपनी परमेश्वर को जाने, आप नाश नहीं होगा, आप प्रतिदिन हमें संसार के ऊपर जय पाएगा. परमेश्वर का ज्ञान आपको सुंदर बना देगा. परमेश्वर का ज्ञान आपको समझदार बना देगा. परमेश्वर का ज्ञान आपका पारिवारिक जीवन कैसा चलाना सिखा देगा. पति पत्नी कैसे है, पत्नी को कैसा प्रेम करना है, पति को कैसा आदर करना है, आमीन, पारिवारिक जीवन कैसे सक्सेस होना है. बहुत सारे परिवार लड़ते झगड़ते नाश हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. बाइबल कहते हैं मेरा प्रजा ज्ञान की कमी का कारण नाश हो रहा है. यू आर perishing without the knowledge of God. I mean, you have to know the knowledge of God. आपको धन दौलत की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है. If you have the wisdom of God, everything will be added unto your life. Hallelujah. सब कुछ आपका पीछे आएगा. लेकिन हमें धन की लालच है, हमें संसार की लालच है, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं. Change your attitude. You are going to be a great blessing for the nation. Hallelujah. पास के व्यक्ति को हिलाकर बोलो, परमेश्वर को जानने के लिए इच्छा रखो. I want to know my Father. I want to know my Creator. मुझे मेरा परमेश्वर को जानना है. Hallelujah. उसके लिए बोलेगा तो मेरा पास टाइम नहीं है, हमें मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा पास वो जरूरत है, मेरा बेटी के लिए, मेरा बेटे के लिए. I have so much of time. मेरा पास टाइम नहीं है प्रभु की उपस्थिति में. हमें एवरीथिंग इज वहां पर है. प्रभु की उपस्थिति में बैठो, बाकी सब कुछ प्रभु करेगा. आप कितना की भाग दौड़ करो, नहीं हो सकता. बाइबल कहते हैं यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है. यहोवा घर की रखवाली ना करे, जागने वालों को जागना व्यर्थ है. Hallelujah. You have to know your Creator. उसके बाद जल्दी से मैं समाप्त करना चाहता हूं. उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है उसके 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया. हालेलुया. आमीन. यहाँ पर उसकी 18 पे लिखा हुआ है, आमीन, 18 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि
उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। 3 बातें वहां पर लिखा हुआ। एक, हमें परमेश्वर की बुलाहट की आशा। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं बाइबल कहते हैं परमेश्वर को मैंने नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे चुना है और चुना हुआ हमारा जीवन के लिए परमेश्वर की मन में एक आशा है। एक माँ बाप अपनी बच्चों को बढ़ाते हैं, उसकी मन में बहुत बड़ा आशा है, मेरा बेटी ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा ऐसा होगा। ये सारी आशाएं एक होप होते हैं। मैं बोलता हूं, आप समझ लीजिए, आपकी इच्छा का विरोध, आपकी आशा का विरोध में जो कुछ बातें होते आपको दुख आ जाते। माँ बाप की बात ना मानते हुए बेटी या बेटा अपनी मर्जी पर चला जाता है, दुख होते हैं, दुख होते हैं। आपको समझना है परमेश्वर की बुलाहट की आशा, द होप ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आपके लिए परमेश्वर के अंदर एक इच्छा है, बुलाया और आपको पवित्र किया, आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, आपको धर्मी ठहराया और परमेश्वर आपको महिमा भी पहना देंगे। परमेश्वर ने बुलाया कब? जगत की उत्पत्ति से पहले, मां की गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। उसकी चुनाव में एक आशा है हमें। उसके बाद द सेकंड थिंग इज, उसमें उसकी बुलाहट की आशा हमारे लिए क्या है और उसकी बुलाहट की, उसमें उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? ग्लोरी, बोलो ग्लोरी ऑफ गॉड। सो हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर, द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी, हमें आपको समझना है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर इस पृथ्वी में अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर की बुलाए हुए लोगों के द्वारा। He want to reveal his glory। बोलो ग्लोरी, सब लोग बोलो ग्लोरी। महिमा, प्रताप, उसकी तेजस, वो परमेश्वर आपका और मेरा द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। उसकी बुलाहट की आशा हमारे लिए है, कुछ वो समझना है ताकि हमारी मन, वो पौलुस बोलते हैं तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। उसकी बुलाहट की आशा क्या है वो समझ से। द मेन थिंग इज हमारी मन की आंखें खुलना है। हमारी ये आंखें खुला है संसार को देखने के लिए, लेकिन हमारी मन की आंखें खोलना है परमेश्वर की बुलाहट की आशा। और दूसरी बात है उसकी मिरास की महिमा का धन कितना बड़ा है और जो विश्वास करने वालों में उसका सामर्थ, पावर। हालेलुया, आमीन, आमीन। उसका सामर्थ कितना बड़ा है, उसको समझने के लिए हमारे मन की आंखें खुल। सब लोग बोलो मन की आंखें खुल जाए। उसके लिए हमारा जीवन में क्या चाहिए? जो विश्वास, यीशु पर विश्वास करते उस व्यक्ति का जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान, प्रकाशन, सब कुछ आपका जीवन में प्रकट करते हैं। आमीन। वो शक्ति पवित्र आत्मा की द्वारा, बाइबल वहां पर लिखा हुआ है यीशु को मुर्दों में से जिलाए हुआ परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी अंदर काम करते हैं। बोलो यीशु को मुर्दों में से जिलाया। आमीन। और वो परमेश्वर की सामर्थ, बहुत सारे सामर्थ, शक्ति होते हैं, पावर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर होते हैं, हवा को पावर होते हैं। आमीन। अगर तूफान आ गया तो सब कुछ, पानी अगर लहर उठ गया तो सब खत्म हो जाएगा, सामर्थ है। लेकिन उन सारी सामर्थ के ऊपर एक सामर्थ है, हमें परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया, बोलो परमेश्वर का सामर्थ।
आमीन, वो तूफान को शांत करने के लिए वो सामर्थ्य है। यीशु ने बोला लहर आमीन थम जा और आमीन हवा रुक जाए, आमीन उसके सामर्थ में हवा रुक जाते हैं, लहर बंद हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। वो सामर्थ आपके अंदर प्रभु उंडेलना चाहते हैं। किसका जीवन में आते हैं? जो विश्वास करते हैं। आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि उसकी बुलाहट की आशा, परमेश्वर की आशा क्या है। दूसरी है आमीन उसकी मिरास की महिमा का धन कितना बड़ा है। और तीसरा उसकी विश्वास करने वालों में उसकी सामर्थ। सब लोग बोलो सामर्थ। एक आमीन इब्रानी में बोलते एक्सोसिया, आमीन एक डुनामिस पावर। बोलो एक डायनामाइट एक जगह में जाकर, आमीन अगर एक डायनामाइट यहां पर फूट जाएगा पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। आमीन वो आमीन डुनामिस का पावर क्या होते हैं? सैकड़ों डायनामाइट एक साथ फूट जाते हैं, उससे प्रभाव कितना पड़ते उससे भी बड़ा होगा। एक डुनामिस पावर आपके अंदर उंडेलना चाहते हैं। कितना लोग बोलते हैं ये सामर्थ मुझे चाहिए? किसको मिलते हैं? जो विश्वास करने वालों में। आमीन, वो अगर विश्वास करेगा, आमीन वो आपका जीवन में, आपको मालूम है ये विश्वास से मिलते। इसलिए पौलुस आमीन एफेसुस की कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूं। आपकी विश्वास को देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। एवरी चर्च मेंबर्स यू हैव फेथ इन जीसस द वर्ड ऑफ गॉड। आप विश्वास करें। विश्वास में एक सामर्थ। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हाथ फैलाकर बोलना है, लॉर्ड आई नीड योर पावर इन माय लाइफ। आमीन, मुर्दों को जिलाने का सामर्थ आपके अंदर है। विश्वास करने वालों में मरियम, आमीन स्वर्गदूत मरियम का पास आकर बोला तू आमीन गर्भवती होगा, आमीन पुत्र को जन्मेगा। बोला पुरुष को नहीं जानते हैं। आमीन परमेश्वर स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, असंभव संभव में बदल जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका जीवन में जो पवित्र आत्मा आएगा, आमीन नॉर्मल नहीं, नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल पावर आपका जीवन में आ जाएगा। We need Holy Spirit. Hallelujah. बोलो पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया सामर्थी कलीसिया है। असंभव को संभव में बदलने वाला कलीसिया है। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा से भरना है, सामर्थ से भरना है। हालेलुया। पावर ऑफ गॉड। आपको मालूम है ये सामर्थ आप प्राप्त करना है। मैं विश्वास करता हूं उत्तर भारत उस सामर्थ को देखने जा रहे हैं। साइन परिवार उस सामर्थ को देखने जा रहे हैं। कितना लोग चाहते हैं मुझे भी चाहिए? वो अपनी जगह में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। आई वॉन्ट टू प्रीच मोर। हमें और भी कुछ बातें मैं प्रचार करना चाहता, लेकिन हमारा समय हमें रोकते हैं। आमीन, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका विश्वास रबाना हस्यांतरे, हमें आपका विश्वास के हृदय हट जाए और विश्वास करें परमेश्वर मेरे जीवन में और जीवन के द्वारा अद्भुत करेंगे। और परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हमें मिले। हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु से कहे ओपन माय स्पिरिचुअल आई टू सी यू। हमें मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु। हमें आपकी बुलाहट की आशा को मैं जान सकूं। आपकी मिरास की महिमा का धन कितना बड़ा है मैं समझ सकूं। और विश्वास करने वालों में परमेश्वर की सामर्थ जो पावर मैं अनुभव कर सकूं। अपनी आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। ओ यीशुआ, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया। पत्रोस को यीशु मसीह ने बुलाकर बोला मेरा पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। पत्रोस को नहीं मालूम था आमीन परमेश्वर की महान बुलाहट उनको एक प्रेरित बनाने के लिए है। लेकिन आमीन मां की गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने पत्रोस को चुन लिया था। आज यहां पर मुझे सुनने वाला, ऑनलाइन में सुनने वाला प्रिय लोग, आपको परमेश्वर ने इस पीढ़ी में प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ता और अलग अलग प्रभा की सेवकाई देकर आपका जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत करना चाहते हैं।
उनकी बुलाहट की आशा क्या है वो समझने के लिए कलीसिया की मन की आंखें खुल जाए। आमीन। आज मेरा प्रार्थना यही है, लॉर्ड ओपन द स्पिरिचुअल आई ऑफ आवर पीपल, ओ लॉर्ड। Lord, open the eyes, open the spiritual eye of our people, your people, oh Lord. हर एक व्यक्ति की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है वो समझ सके, और उसकी मिरास की महिमा की धन कितना बड़ा है। संसार की धन के पीछे भागने की जगह परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए रखा हुआ उस मिरास की महिमा का धन को जानने के लिए प्रभु मदद करे, और विश्वास करने वालों में परमेश्वर की जो असीम सामर्थ कितना बड़ा है वो समझने के लिए प्रभु सबका जीवन में कार्य करे। आंखें बंद रखे। अगर आप अपने हाथों को फैलाकर या उठाकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने मुंह खोलकर प्रभु से बोले, प्रभु मेरी बुलाहट की आशा, आपने मुझे बुलाया, मेरा माँ बाप नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, आपने मुझे बुलाया। मैं संसार के कहीं पड़े हुए थे, किसी को नहीं चाहिए था, लेकिन ईश्वर आपने मुझे बुलाया। You have a great plan for my life. Oh yes, Lord. अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए। प्रभु का वचन कहते हैं, जितनों ने उनकी ओर देखा उसकी मुंह कभी लज्जित होने नहीं दिया। प्रभु से कहे, अब्बा अब्बा, मेरी बुलाहट की आशा को मैं समझ सकूं। ओ आपकी मिरास की महिमा का धन कितना महान है, ओ मैं जान सकूं। आपकी जो विश्वास करने वालों में वो सामर्थ्य मेरा इस मिट्टी का बर्तन में उंडेल दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सहायता करे। शबाला घस्या धरे। इस समय में प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन में प्रभु कुछ नया कार्य करेंगे। ये कलीसिया का शिफ्ट का समय है। आपका जीवन की एक आमीन नॉर्मल चलने का समय खत्म। सुपर नेचुरली आप मूव करने जा रहे हैं। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल। बुरा बाला बशतरा। विश्वास करके प्रभु से मांग। आमीन। स्थितियां आपका जीवन में बदलने जा रहा है। आराधना, 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 यीशु आराधना, आराधना, आराधना। मेरा प्रेम गीत प्यारे यीशु मेरे अब्बा, मेरा प्रेम गीत प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। मिलकर आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना,
प्यारे पिता, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पौलुस की प्रार्थना कलीसिया के लिए, एफेसुस की कलीसिया के लिए जो था, प्रभु हम भी प्रार्थना करते हैं कलीसिया में जो यीशु पर विश्वास बढ़ते जाए और प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हर एक व्यक्ति का जीवन में इन दिनों में मिले। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हर एक व्यक्ति का जीवन में यीशु का नाम से हो जाए। परमेश्वर को जानने के लिए इच्छा रखे, पवित्र आत्मा मदद करे और हर एक व्यक्ति की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, खुल जाए और परमेश्वर की बुलाहट की आशा को पहचाने और अपने परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन कितना बड़ा है और विश्वास करने वालों में परमेश्वर की जो असीम सामर्थ प्रभु अनुभव करने के लिए सबको मदद करे। सबके ऊपर वो आशीष को हम रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु का नाम से हम पिता से ये बातें मांगते हैं, पवित्र आत्मा मदद करे। आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम में सब लोग मिलकर बोले आमीन, 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 आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे। आज कल से वो मीटिंग के लिए आपकी प्रार्थना मांगते। कितना लोग बोलेंगे हम प्रार्थना करें? थैंक यू। हमारे जवान बच्चे आशीषित होना है। अलग अलग प्रभु का सेवक लोग हमारा मध्य में सेवकाई करने के लिए होंगे और सब आशीषित होने के लिए प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा, मैं ऑलरेडी आपके लिए जो प्रार्थना किया था, लेकिन पहली बार आए वो लोग किसी स्पेशल प्रत्येक विषय के लिए प्रार्थना करना है तो मैं यहाँ पर रहे। बाकी मैं अनुरोध करूंगा, अगले सेशन के लिए टाइम हो गया है, आप सबसे पर्सनली मिलने का इच्छा है, लेकिन प्रभु अवसर देगा तो जल्दी से मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थर्सडे फास्टिंग प्रेयर नहीं होंगे, थर्सडे हमारा यूथ मीटिंग होंगे, इसलिए थर्सडे फास्टिंग प्रेयर नहीं होंगे। ट्यूसडे नाइट प्रेयर का हमें सोचना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली पूरा दिन मीटिंग होंगे, नाइट प्रेयर कैसे होंगे हम बता देंगे, उसको तो आप चिंता नहीं करना, प्रभु सहायता करें। और गॉड ब्लेस यू।